तो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बैंकिंग अपडेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्राइवेट बैंक के हिमायती लोगों के लिए एक सूचना कि उड़ीसा गवर्नमेंट बैन्स HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक फ्रॉम हैंडलिंग गवर्नमेंट बिजनेस। आपको याद होगा कि पंजाब बैंक गवर्नमेंट ने भी HDFC बैंक को बैन किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था गवर्नमेंट बिजनेस के लिए। आफ्टर पंजाब, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बैंड सम प्राइवेट बैंक फ्रॉम हैंडलिंग गवर्नमेंट बैंक्स businesses. The Odisha government made an important decision. It has stopped using the services of three major private banks, HDFC, ICICI and Axis Bank, for handling government related business. ऐसा क्यों किया? कारण उसका क्या है? This has been done due to the persisting poor performance in some flagship government schemes over last 2 financial years, coupled with discouraging general banking parameters. The Finance Department of Odisha government released an official notification. It clearly said that the above mentioned 3 banks are removed with immediate effect from the list of banks that are allowed to handle government funds, manage deposits, work with state government departments and support organization linked to the government. यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से इनकी सर्विसेज गवर्नमेंट ने लेना बंद कर दिया है और जो फिक्स डिपॉजिट्स इन डिपार्टमेंट्स में इन बैंक्स में रखे हुए हैं उनको मैच्योरिटी तक कंटिन्यू करने की बात कही है और आफ्टर मैच्योरिटी इसको भी विड्रॉ करने के लिए कहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इन प्राइवेट बैंक्स की हिमायती की किस तरह सर्विसेज ये देते हैं। इनका मेन मुद्दा केवल है टू अर्न द प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा और भी कोई सोशल ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, इस तरह की बातों में इनका कोई ध्यान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट मैसेज की तरफ शेयर करते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ₹183 करोड़ फेक बैंक गारंटी स्कैम, पंजाब नेशनल बैंक सीनियर मैनेजर अरेस्टेड। 183 करोड़ का फेक बैंक गारंटी के बारे में मैसेज है। A big scam related to the bank guarantee has been reported. The CBI has taken strong action in a major scam involving fake bank guarantee of ₹183.21 crore. As per the orders of the High Court of Madhya Pradesh, the CBI registered 3 separate cases on May 9, 2025. These cases are related to a large financial fraud where the fake bank guarantee were submitted to the Madhya Pradesh Jal Nigam Limited by a company based in Indore. In 2023, the Indore-based company was awarded 3 irrigation projects worth ₹974 crore by MP Jal Nigam. To support these contracts, the company submitted 8 fake bank guarantee totaling ₹183.21 crores. At first glance, these guarantees seemed valid because Madhya Pradesh Jal Nigam received email confirmation that appeared to come from Punjab National Bank. However, it was later found that these emails were fake and sent using a false domain that looked like the official PNB, that looked like the official Punjab National Bank mail. Believing these fake confirmation, Madhya Pradesh Jal Nigam went ahead and gave contracts worth really ₹1,000 crore। यानी कि बैंक गारंटी जो थी वो फेक थी और उसका जो पंजाब नेशनल बैंक से ईमेल भी आया था वो देखने में सही लग रहा था, और जबकि वो फेक एक गलत डोमेन से इस तरह से ओरिजिनेट किया गया था कि वो पंजाब नेशनल बैंक का लग रहा था। इसमें एक सीनियर मैनेजर को पंजाब नेशनल बैंक को कलकत्ता बेस्ड था, उसको अरेस्ट किया गया है। And both arrested individuals were presented in Kolkata court and will be taken Indore under the transit remand for the further questioning. So far, the investigation has revealed that a syndicate based on Kolkata was involved in creating and distributing fake bank guarantee to win government contracts in different states. The scams appears to be well organized
and the planned. The CBI's investigation is still ongoing and more details may emerge as they continue to collect evidence and question those involved. So bankers please caution के साथ बैंक गारंटी के बारे में अपना ऑपरेशन करें, ताकि ये उम्मीद ज़रूर रखें, ये ज़रूर देखें कि हो सकता है कि ये कहीं बैंक गारंटी फेक ना हो। और ऐसे ही एक खबर, हाई कोर्ट के नाम से बैंक के पास आई फेक ईमेल से 4 खातों में 0.193 करोड़ रुपए केरल कर दिए ट्रांसफर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैथल ब्रांच में इस तरह का ईमेल आया कि हाई कोर्ट के नाम से कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए, और बैंक कर्मचारी और मैनेजर ने से पूछा तो उन्होंने कहा कि बैंक के पास बॉम्बे हाई कोर्ट से मेल आई है, जिसे अंधेरी पुलिस स्टेशन मुंबई के साइबर क्राइम ब्रांच के तहत मामला दर्ज होने का हवाला देते हुए 4 कंज्यूमर के खाते से पूरी राशि एक खाते में ट्रांसफर करने के ऑर्डर दिए गए हैं और ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में पता चला कि ये फेक मेल आया था। सो फ्रेंड, जब हम बैंक में ऑपरेशन करते हैं तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे आजकल जो साइबर फ्रॉड्स करने वाले लोग इस तरह का मेल भेज के बैंकों को गलत मेल भेज के पैसे ट्रांसफर कराते हैं। बाद में कंसर्न अधिकारी उसमें इन्वॉल्व फंस जाता है। सो फ्रेंड्स, बैंकिंग बचा के सावधानी पूर्वक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।